You know, every time I had a breakup as a kid, I used to come to Mount Mary and say, you know, I will come and put so many candles. You please bring her back to me. You also spoke about the whole Kangna and Simran fiasco. Fiasco क्या मतलब गलती होती है यार इंसान से. You make those mistakes. She's a very good actor, really good actor. I feel has limited herself by making films about herself. She's a big star. Yeah. आज भी. She's a big star and she's a very good actor. हाँ. I maintain that. And working with her, we didn't gel. Working with her was a massive mistake. हेलो सर, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी. क्या हाल है आपके? Very good, Siddharth. How's Siddharth, no, not Siddhant. जी सिद्धार्थ. Not the Siddhant that we don't have today. नो. मैं आपसे ये बता दूं पहले, देखिए फॉर्मेट ऐसा है कि जैसे हम अभी पीटर डायस रोड से लेफ्ट लिए हैं, तो यू कैन ऑलवेज टेल अस हाँ. कि भाई कोई भी कहानी पर्टेनिंग टू दिस एरिया ऑफ द टाउन और सिटी. Well, the biggest story about this area is that I moved here 2 years ago. दैट्स इट. Yeah. आप and बैंड्रा बॉय नहीं हो? I am a Khar boy. I was born and brought up in Khar. क्या बात है. Yeah. So the lanes and bylanes of Khar are like my second home. हाँ. But then वक्त and everything happens to you. हाँ जी. And then you move. I moved out of Khar and so this is like a homecoming. मतलब ये खार के पास ही है. तो कहाँ रहे हो आप? मैं खार रहा हूँ. खार से I moved to लोखंडवाला. जी. And from Lokhandwala, I moved to a village called Malwali. Malavli? Yeah, Malwali. I know this somewhere. It's near Lonavala. It is approximately 10 kilometers away from Lonavala, and it's got the Bhaja caves, very old Buddhist caves. So yeah, I was living there like a Buddhist. तो मैं सर आज रिसर्च करते करते ये जाना कि you're a BTech, you've done computer engineering? I used to do computer programming. What are you saying? Yeah. I was a programmer and I ran a small software company. Startup is a new word. हाँ. So this is way back in 88, 89. Oh fuck, ये तो पता ही नहीं था मेरे को. So that was when I began. I हाँ. was just fresh out of college. I enjoy coding at times. Really? Yeah, I enjoy it. I find it very relaxing. The problem is coding at that time, the profession was never taken seriously. Software business was never taken seriously. तो वो आज जो कोडिंग का वो हो गया है. हाँ. तो उस वक्त मतलब हम लोग कोडिंग की जगह सिर्फ पैसे ढूंढते रहते थे. क्या बात कर रहे हैं? पैसे ढूंढते रहते हैं. Then your code would be full of bugs because you don't have time to debug. Yeah. You don't have time to test the code. हाँ. So they were early days. मुझे सिर्फ मुंबई की कहानी बताओ, क्योंकि जनरली हम लोगों से पूछ रहे होते हैं कि मुंबई कब कहाँ कैसे. आप तो मुंबई के ही हो. मैं मुंबई का ही हूँ. आई हैव बीन बोर्न ब्रॉट अप. मैं मुंबई का नहीं हूँ, मैं बॉम्बे का हूँ. बॉम्बे के. हाँ, फिर वो मुंबई बना. जी. And you know, when you see my segment in Modern Love, Yeah. it is for me that is the cusp. 1993 के बाद ना Bombay became Mumbai. Correct. We were never the same. Yes. You know, the gap that existed in our society suddenly became wider, and it became obvious. I have seen you. I spotted you also like a smiling, laughing Hitchcock. You come in and you do your thing. And अगर आप लोगों ने अभी तक मुंबई लव नहीं, मॉडर्न लव, मुंबई लव नहीं देखा है, तो प्लीज जाके देख लो ताकि आप इनको स्पॉट करो और फिर बताना मेरे को क्या पहने हुए हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि you have actually It's spotted it. very easy to spot because of the color of the clothes. Yes. One more clue. I mean, you're ecstatically happy also. So मतलब मुझे ऐसा लगता है कि the politics and sexuality वाला जो क्वेश्चन मेरा आगे जाके था ना, it is reflective in your cinema ना. मैं कबीर खान साहब से भी ये बात कर रहा था. It comes. I mean, it's not even a conscious choice. हाँ. लोग बोलते हैं कि अच्छा ये इसने consciously politics include किया है. हाँ. That he has he's talking about marginalization. It doesn't. It reflects in your stories when they come from the heart. जी. तो जो चीज़ें आपको परेशान करती है, जो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोचते हो, जो आप जीते हो, that reflects in the work that you do, in the characters that you portray. And वही है, मतलब it was a very unconscious thing. कि मुझे मतलब ये बात नहीं समझ में आती कि मतलब why I don't wear those politics on my sleeve. I am what I am and I do it.
बस। I do it without fear. हाँ ये जो मुझे कहना है मैं कह दूंगा, हाँ आपको अच्छा लगे ना लगे, ये मेरा तरीका है. फेयर. बट काफी कम्युनिटी ने थोड़ा सा उसको बैकलैश दिया कि व्हाई डिडंट यू कास्ट गे फोक्स इन इट. मुझे मतलब आई हैव आई अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग या एंड आई बिलीव कि रिप्रेजेंटेशन शुड कम फ्रॉम द स्टोरीज हाँ जी एंड यू शुड अप्रिशिएट दैट. करेक्ट. एंड ये मतलब आई एम सेइंग कि भाई ओके, इफ समबडी इज राइट फॉर द पार्ट, हाँ. वेदर इज क्वियर और स्ट्रेट, he should be cast. Yeah. Cast correctly. Yeah. And मतलब ये इल्ज़ाम मुझ पर तो ना लगाओ जो मतलब आज तक मतलब I have not fallen for that trap. Except 1 or 2 times, कि कंगना रनौत के साथ सिमरन बना दी. But I've never fallen for that trap कि भाई मतलब फिल्म में मतलब I've been tried to be as honest with the casting as possible. And Yeah. अगली बार मतलब वो बोल रहे हैं तो मैं करूँगा. I will have a queer representation if the actors are correct for that part. Yeah. If I see that, मतलब again it's an aesthetic choice that you make. These are choices you make. Next time maybe, but I don't see the reason for a backlash. हम the fact that there's a honest representation of, and this is a story that I've seen happening in front of me. Yeah. कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, अरे बड़ा ओल्ड फैशन्ड है. भैया that's the clash of cultures अभी भी कि प्यार को अभी भी ठीक से लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते. एंड मतलब हमें ये कहानियाँ कहना ज़रूरी है. इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिल्ड अ लार्जर एक्सेप्टेंस एंड एम्ब्रेसिंग ऑफ दी स्टोरीज. ये दिस ऑल्सो इवन जो भी मतलब क्रिटिसिज्म फ्रॉम द कम्युनिटी आया है, मतलब दे remember one thing, I am the guy who made Aligarh also. Yeah, I was also thinking that. Which was मतलब imagine that without a Manoj Bajpayee. Yeah. He's as straight can be. But imagine that film without a Manoj Bajpayee. Correct. So how much it contributed to the debate. And Aligarh came pre-377. Exactly, pre-377. How much it contributed to that debate. Correct. So मतलब आप at least understand the intent of the maker. You see, intent correct होना चाहिए. So very often there are films that mock. Yeah. They make fun of that, and मतलब films made by queer filmmakers are sometimes insensitive to their lives. Yeah. So at least मेरा काम वैसा है नहीं है. Respect that. ये यहाँ इस एरिया की माउंट मेरी की और हम उतर रहे हैं जहाँ पर इसकी माउंट मेरी का तो कमाल है. मतलब माउंट मेरी every time I had a breakup as a kid, I used to come to Mount Mary and say कि I will come and put so many candles कि please bring her back to me. My life was about breakups, and those breakups were not initiated by me. They were always initiated by the girl. So, interesting. तो वो it is Mount Mary is my request for makeup go to place. Fair enough. But yeah, even now I come on the promenade, I come every morning as much as possible. Really? So I then go up Mount Mary. I stand for a while by the shrine and just spend some time there. बहुत सुंदर बना दिया इन्होंने प्रोमेनाड आजकल अभी तो. हाँ काफ़ी सुंदर है भाई, लेकिन आप मंडे मॉर्निंग आप देख नहीं पाओगे. मतलब उसको इतना गंदा बना देते लोग. सही बात है. हाँ, दे कम पार्टी मतलब यहाँ सब फेंक के चले जाते हैं. तो रेस्ट ऑफ द डेज इट्स वेरी क्लीन. और मतलब लकीली इधर द रेसिडेंट्स एसोसिएशन इज टेकिंग केयर ऑफ इट. तो वो साफ करते हुए मंडे मॉर्निंग आपको दिखेंगे लोग कचरा साफ करते हुए. They made this nice secluded area also. I never saw this before. Interesting. चलिए. मतलब there was one big secluded area called the Bandra Fort पीछे जहाँ हम जाते थे. Bandra is all about my romances. Yeah. So we'll discuss more of this, but outside also. चलो. वो बंद करवा दिया. Now this is replacement. So beautiful यार. हाई टाइड का मजा ही अलग होता है बॉम्बे के हाई टाइड का ना. बॉम्बे में समुंदर का ही मजा अलग है. मतलब we don't value it enough. कितना खूबसूरत है यार. कितना रोमांटिक शहर है. तो इधर आपने किया रोमांस? यहाँ नहीं किया. यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल था. क्यों? मैं गाड़ी लेकर जाता था बैंड्रा फोर्ट. एंड गाड़ी में I was shy. Perhaps that's why they left me. देखिए दिल्ली फिल्म मेकर जो है मेरे अंदर, वो ऐसे मस्त लाइट गिर रही है, थोड़ा सा बीच बीच में सॉफ्ट भी हो रखा था.
मजे आ जाते हैं, मतलब दैट्स द थिंग, यू नो, एवरीबडी, ऑल ऑफ अस आर फिल्म मेकर्स, है ना? एंड दैट्स आई बिलीव इन दैट फर्मली कि मैं अगर फिल्म मेकर बन सकता हूँ तो कोई भी बन सकता है. ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? या एब्सोल्युटली, बिकॉज कहानियाँ किसके पास नहीं है? हाँ, कहानियाँ हम सबके पास है. तो देखो भाई, आपको पहचान लिए हैं जो लोग, उनको हेलो कर दो जरा ऐसे. बहुत, पहचाना? हाँ, अच्छा. ये अच्छी चीज़ है. हाँ, मतलब मुझे ताज्जुब होता है जब लोग पहचानते हैं कि क्यों भाई, ऐसा? कि यार एक ही तो सीन किया है उसमें, मॉडर्न लव में. हाँ, बाकी आप कभी नहीं आए ना ऐसे? नहीं, हर फिल्म में होता हूँ. मैं वही बोल रहा था अभी कि स्कैम में कहीं दिखे हैं क्या? फिर मेरे को कोई बोलता है स्कैम में हूँ. स्कैम में कहाँ पर हो? बैक टू कैमरा. अरे वाह. हाँ, तो जैसे सीन हर्षद जब फेल हो गया है, हाँ, तो देन ही इज ट्राइंग टू रिवाइव हिज बिजनेस एंड ही हैज कॉल्ड सम इन्वेस्टर्स. तो एक इन्वेस्टर मैं हूँ और मैं हर्षद को कहता हूँ कि भाई तुम्हारे रिकॉर्ड को देखकर मतलब यू नो लोग घबराएंगे इन्वेस्ट करने से. ये कहता हूँ. बट बैक टू कैमरा किया था मैंने एंड आई टेल हिम कि भाई तुम मतलब इतने एक तुम्हारा टाइम था, दौर था तुम्हारा, हाँ, लेकिन वो दौर खत्म हो गया. तो वो छोटा सा पीस था एंड दैट ऑल्सो वॉज एक्सीडेंटल. आई एक्चुअली वॉज मैं शूट कर रहा था, वेरी हॉट डे एंड यू नो ये एक एक सीन के लिए कभी कभी कास्टिंग रॉन्ग हो जाती है. सो देयर वाज समबडी वाज वेरी यंग. आई सेड ये हर्षद को ज्ञान नहीं दे पाएगा, इट लुक वेरी रॉन्ग, ये सीन खराब हो जाएगा. तो दे सेड तो अभी क्या करें? वी वर इन दिस प्लेस कालम्बोली. बोले अभी कोई एक्टर भी नहीं पहुंच पाएगा इतनी जल्दी. तो ऐसा ठीक है, दे दो कपड़े, ढूंढो कुछ है क्या, ट्राउजर्स सूट वूट होगा तो पहन लेता हूँ. सही. तो क्या है, दो चीज़ें होती है, एक तो सूट पहनने का मौका सिर्फ स्क्रीन पे मिलता है. हाँ, बाकी हम लोग सूट पहनते नहीं है. हाँ, मतलब अवार्ड्स में कभी कभार वो मतलब अवार्ड्स मिलते नहीं है तो वो पहनने में मतलब जब मिलते हैं तो मतलब खूब, मैंने फिल्म फेयर अवार्ड जब मिले हमें स्कैम के लिए तो 2 सेशंस में था जी. तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई एक ही सूट पहन के आना क्योंकि वी वांट टू टेलीवाइज इट एज वन पीस. मैं वो नहीं करूँगा, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू. So I wore 2 There's a suits. chance to wear 2 suits. Why not wear 2 suits? हाँ, आफ्टरनून सेशन में टेक्निकल अवार्ड्स I wore 1 suit, in the evening I wore another suit. I could not let go of that opportunity to wear a suit. टेक्निकल अवार्ड्स के बारे में वैसे काफी चर्चा हुई है हमारे, मतलब एटलीस्ट इन द इंडस्ट्री they've been spoken about a bunch. अच्छा, in what way? In a good way, bad way? In a manner that they were given the least amount of screen time ना, अगर आप देखो तो. That is मतलब they follow the leaders. I mean Oscars, look at them, the way they ignore technical awards. You know, and it is such a pity. You know, मुझे कभी कभी मन होता है कि you know we should do awards which are purely technical. Yeah. You know, because nobody is a technician in this industry. They are all artists. सही बात है. Everybody. Your sound designer, your cinematographer, your production designer, everybody. Your casting director. They are all artists. मतलब हम क्या है तौहीन करते हैं उनके काम की by calling them technicians. वो मतलब थोड़ी AC रिपेयर करने आ रहा है. सही बात है. You know, they are responsible for the final experience that you have on screen. Absolutely. मतलब हम लोग जितना चांस मिलता था, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि भाई आपको आइडिया भी नहीं, साउंड इंजीनियरिंग होती है पूरी, मतलब एक एंड साउंड डिजाइन होता है. डिजाइन होता है. सो इट इज मतलब हम साउंड डिजाइन में भी जैसे यूजुअली एस्थेटिक इज अ वर्ड दैट यू यूज फॉर इमेजेस. हाँ, कि ये एस्थेटिक है, ये you know, the production design, cinematography, photography, but sound design plays a vital role in aesthetics. कि वो मतलब एक वर्ल्ड बनाता है ना कि आप कि जैसे मेरी फिल्म थी अलीगढ़, it was full of silences. तो the sound designer decided to have the silences, and silences doesn't mean deathly silence. There's eerie. There's a pensive music. There is no. It's not even music. Music is a different aspect again. हाँ जी. It is just the ambience that you create. Because wherever you are, like हम अभी गाड़ी में हैं. हाँ जी. There's a minor rumble of the car. Car's engine. There's that mild air conditioning. Correct. So that is mixed into our voice. Now that ambience gives the audience the experience of being in the car with us. Yes. And that experience, you know, we don't understand.
तो इवन द पीपल हु गिव दी साउंड डिजाइन अवार्ड्स डोंट अंडरस्टैंड दैट, दे गिव इट टू एक्शन फिल्म्स, क्योंकि उसमें बुलेट के और हाथापाई के, बाइक्स के, इन सब के लाउड साउंड्स होते हैं. हाँ. We don't value silence enough, and the people who decide on that also don't understand the role of a sound designer. You're so right. I mean, this is an insight that I take back today. But अगर आपको ऐसी मस्त insights मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज ऐसे हमारे को बोला जाता है कि the way the show is designed ऐसा लगता है जैसे आप हमारे साथ ही बैठे हो. तो ऑडियंसेस को ये लगता है, और ये भी इस वजह से क्योंकि हमारी टीम है बहुत बड़ी. लोग मुझे मैं ऐसे डीएम कर रहे होते हैं, मैं बोलता हूँ भाई उनको जाके डीएम करो आप, उन लोग की वजह से मैं हूँ. वही वो जो मेरी थीम्स है वही है, इट्स अबाउट द इनविजिबल. दे मेक लाइक बॉम्बे है या मुंबई, it does not run because of you or me, it runs because of everyone in the city. That man who's carrying the theli there, हाँ, it runs because of him. The man who's driving that taxi there, yeah, it runs because of him. You know, each one, there are the hoardings that you see, all these politicians, it does not run because of them. yeah. You know, वो नहीं चलाते, हम चलाते, इंसान चलाते, and all kinds of people. सॉरी, थार के वाले भाई साहब को बहुत जल्दी है. सॉरी सर, आप जाइए. थार है ना वो? हाँ, थार है. He owns the road ना, मतलब Yeah. ऊपर बैठा है ना 10 फीट. आनंद महीने को कहना पड़ेगा कि you should put some public service announcements कि this is not the Thar desert. देखिए, हम लोग हमारे गेस्ट को बहुत ओपनली बोल देते हैं, these were dad jokes. So this will be categorized for us as a dad joke. It is, मतलब I am famous for dad jokes. Really? My kids hate my dad jokes. But I think they're comic relief, where they're needed. They needed, मतलब dad, मतलब I lost my father last year. हाँ जी. I miss his jokes now. मतलब I used to get irritated कि यार क्या बात कर रहे हो यार, and that is, ये मतलब जीवन का एक वो है, सत्य है. हाँ. कि आज मेरे जोक्स डैड जोक्स है, कल तुम्हारे होंगे. सही बात है. तो आज आई हैव टेकन ओवर. You know, but it's a good thing you're cracking them. It keeps everybody and everything alive around. हाँ, I think मेरे सेट पे भी I keep cracking dad jokes only, but people laugh. I don't know whether it is to make me happy, but they laugh. So I think I'm very funny. तो मैं ये बोल रहा था कि in our भाषा जैसे I was today years old when I realized आप खाना खजाना बनाया करते थे. जी. Fuck my life. मतलब it is a primary reason why I wanted to become like a cook, chef, whatever little capacity I can do straight in. And so I'll tell you a secret. I also wanted to become a chef. And I discussed that possibility when I was, when I was doing science with my father कि मैं chef बन जाऊँ. तो my father was very pissed off. बोला कि मेरा बेटा मतलब he'll cook in a kitchen. तो ऐसे ठीक है, नहीं करूँगा. Okay, sorry. But वो एक रह गया. And then खाना खजाना sort of presented itself to me. मतलब मैं I was working as a programmer in Australia, and then I moved to this place called Fiji Islands. Beautiful place. And you would work at a pirated shop? Yeah, pirated video. मतलब pirated videos and original भी बेचते थे वो लोग. But they would rent it out. सब कीड़ा कांडी किया. तो लेकिन उसमें मैंने बहुत I watched a lot of films, and मतलब मुझे films देखने का और film ये खाना पकाने का शौक हो गया. I suddenly found that I had a cooking range at home. So I said, what to do with it? I have to cook. I can't go out every day. Also, घर से बाहर जब आप इंडिया से बाहर जाते हो तो आप रियलाइज करते हो कि कितना ज़्यादा वैल्यू करते हो इंडियन फूड. And then तभी तो मोबाइल फोन्स भी नहीं. I used to call my mother, ask her कि ये कैसे बनाऊँ कैसे. तो शुरू हुआ from mummy's recipes, and then it slowly became my own. Perfect. I started experimenting with things, started buying cookbooks. So जब when I came back to India, I actually realized कि मुझे करना नहीं है ये सब. Programming and all is not my thing. And मुझे just ZTV had just started, तो मैं चला गया उधर and as a programmer I wrote a proposal which was a flow chart actually. ये show ऐसे होगा. अरे वाह. हाँ, तो पूरा flow chart form में मैंने बनाया. मुझे लगा बड़ा cool हूँ मैं. तो मैंने भेजा, and मतलब within 3 weeks ZTV had given me a check saying yes, we are on, you make the show. Wow. Yeah. So it was like the start was phenomenal. You almost feel like
fuck, you have arrived, and ये मतलब the universe is conspiring to take you towards your calling, almost ऐसा हो गया था. हाँ, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको शो मिल रहा है, शो मिल रहा है फूड पे, both things working together, and then I had no idea about how to produce a show, कुछ नहीं. तो मैं होटल्स में जाता था देखने को इनकी कोई शेफ्स है जो प्रेजेंटेबल है. हाँ. एंड आई वेंट टू सेंटोर which is now Tulip Star. It is a banquet hall now. Yes. And terrible one at that. So Centaur used to be a good place. Marriott wasn't there. Yes. In Juhu. So I went there and I sort of asked for the F&B manager. He presented, वो स्वयंवर होता है ना, वैसे 4 शेफ उसने प्रेजेंट किए मुझे. एंड ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो. इनमें से आप देखो कौन है. हाँ. तो उन सबको, सारे शेफ को मिला एंड हम लोग कॉफी पी रहे थे एंड सडनली one guy arrives, another guy in a chef coat arrives and he says कि if you need anything please let me know, my name is Sanjeev Kapoor. एंड वो कार्ड देके चला गया. उसको नहीं बुलाया था F&B मैनेजर ने, उसने बाकी सारे को बुलाया था. इट वाज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो उसमें ऑब्वियस तरह की पॉलिटिक्स चल रही थी. ऑफ कोर्स. सो मतलब संजीव met me, I went home, I called Sanjeev and said कि भाई तू आ जाएगा, I want to meet you. So he came, we started shooting. Sanjeev Kapoor was rejected by ZTV. Wow. Yeah. For they said, अरे नहीं, we want a woman. Housewives want somebody relatable. They want a woman cooking, not a man. तो शुरू वहाँ से हुआ. So what I shot with Sanjeev got rejected. फिर we struggled for 12 weeks. The show just won't take off. We had a woman who the channel gave me to anchor the show. तो on the 12th episode actually channel had said कि भाई हम शो बंद कर रहे हैं. Oh really? Yeah, they said we are shutting the show down. तुमको चाहिए तो last 3-4 wind up episodes कर लो. And so I had nothing to lose. तो वो 12वें या 13th episode में there was a chef who was supposed to come. He must have got wind कि ये शो तो बंद हो रहा है, इसमें जाके फायदा नहीं है. तो he didn't land up only. Oh wow. And so I called Sanjeev एकदम उसमें कि संजीव यार I need your help, आ जा. You have to be on the show. तो संजीव को बुला लिया. तो संजीव came there and said कि अच्छा क्या बनाना है. I said तू देख इधर है, पनीर है, पालक है, चिकन है, जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स, प्याज, टमाटर, ये सब है. देख ले तेरे क्या बनाना है. तो ठीक है चलो सोचता हूँ. And he came up with this dish called Sham Savera. Wow. And Sham Savera became, so it was just palak and paneer dumplings in a makhani gravy, and it has become iconic, that dish. That episode was released and life changed for him and for me. It just changed. मतलब वो recipe became viral. The word viral never existed then, but it went viral. Like we had around 1.5 lakh letters from people saying कि हमने ट्राई किया और कमाल था संजीव भैया. He became संजीव भैया. And then the channel said कि भाई ये actually तुम्हारा एपिसोड बहुत अच्छा ट्रैक हुआ है, तो तुमको और आगे शूट करना है, चलो 8 एपिसोड कर लो, इसके साथ कर लो. We're giving you a little extension. तो वो एक्सटेंशन देते then within I think 6 months Sanjeev Kapoor became Sanjeev Kapoor and the show went on for 22 years. So as we are speaking, Scam का second season चल रहा है, तो वही सुपरविजन चल रही है. तो आप शूट करके हट चुके हो? I am not directing this time. You did 1 episode? No, I have not done anything. Oh, he is the showrunner. I am the showrunner right now. I will be eventually directing some few days of the show, but it's essentially the baby of मतलब the director is Tushar Hiranandani, who made सांड की आँख. अरे वाह. एज अ फिल्म मेकर, जब मेरे लिए तो छोटी मोटी एड्स या ब्रांडेड कंटेंट रिलीज नहीं होता था, और साल में मतलब अगर 100 चीज़ें की और 4 नहीं रिलीज हुई, तो इट्स वेरी लाइक डिजेक्टफुल. और मुझे मेरी एक एक्ट्रेस ने बोला था कि ठीक है ना, इतनी रिलीज हो गई, 4 नहीं हुए तो क्या फर्क पड़ता है. तो हाउ डू यू कोप विद दैट? मैं सीखना चाह रहा हूँ, मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ डू यू कम अप. इट्स नॉट इजी, है ना? इट्स नॉट इजी, बट I've just learned कि भाई you have to pick up the pieces. You have to get up in the morning, pick up the pieces, start afresh. I used to go through times like Dil Pe Mat Le Yaar when it did not work. It's a film I'm very proud of, but it never worked.
And there was also an incident that happened. इंसिडेंट था, so all those things, the political वो backlash था उसका, हाँ. and you know, so all those things when they happened, I got depressed. मतलब 6-7 महीने actually I was on the verge of becoming you know, certified alcoholic. So I sort of took refuge in alcohol and all that, but luckily something snapped. And I said कि fuck it, this is not the thing. Yeah. You know, कि मैं मर जाऊंगा, मतलब at the age of 29 I will kill myself, you know, by just drinking, and I will not make another film in my life. So I picked up the pieces. I made a film called Chal. तो आप नई शुरुआत करते हो. Basically I have never given up starting off. I had seen both Shahid and Aligarh in Iffy and Mami. तो इफी में कुछ नहीं था मेरा. इफी में नहीं था क्या? इफी में मुझे कभी बुलाते ही नहीं है. इफी नहीं था तो क्या था वो? आई थिंक वन ऑफ देम प्रीमियर्ड इन वन ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स ना, टोरंटो के बाद आई थी. हाँ, both were in Mami. both were in Mami ना. Shahid came from Toronto. Yes. To Mami. Correct. And it won a prize at Yes. Mami. It was my first award ever. Yeah. I remember. I think you told that also on stage. Yes, exactly. After 15 years of making film. हाँ. तो मुझे याद है कि उसके बाद हमें लगा था कि अब फ्राइडे को आ जाएगी, क्योंकि we loved the film. It got a standing ovation. It came after 1 year. It came after 1 year. तो ये जो 1 साल का लुल होता है, इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो? मतलब वो शाहिद के बाद का लल तो बहुत टफ था, बिकॉज फाइनेंशियली आई वाज हिट वेरी हार्ड. आई हैड नो मनी. आई हैड Shahid, I made Shahid after coming out of, you know, sort of extended sabbatical, retirement sabbatical, whatever you call it. I had left. वो जो आप 4 साल 3 साल में वहाँ गांव में था, मलवली में था, and I was doing stuff there. So वो कुछ किया नहीं था. I had no income, no money. So that lull was very tough. You know, I used to struggle. What kept me going was कि उस lull में I kept getting invited to festivals with Shahid. अरे वाह. And so you traveled a bunch. So I got free travel and free stay. तो मतलब काफी सस्टेन हो गया उसमें. मैंने आपकी कई सारी कहानियों में आपकी कुछ ना कुछ छवियां देखी हैं, जैसे पर्सनल. हाँ, मॉडर्न लव में जैसे मेरे को दिख रहा है खाना खजाना का डायरेक्टर ऐसे मस्त आपने फूड शॉट ले रखे. मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था ये यहाँ पर रणवीर और अंशुल मेरी फेवरेट रेसिपीज है भाई. उसमें स्क्रिप्ट में वो जो निहारी मटन, हाँ, निहारी एंड यखनी पुलाव, yes. ये दोनों चीज मेरी फेवरेट है. और मैं मतलब निहारी एक्चुअली पिछले 16 साल से ना, आई कीप cooking निहारी and I keep trying different versions of निहारी. तो मेरे घर पे मेहमान भी आते हैं तो निहारी is like the centerpiece. अरे वाह. तो खाना मतलब रणवीर ब्रार को कास्ट किया था, तो इतना उसने मतलब अच्छा बनाया था. वो तो बस मतलब दिख ही रहा था. बहुत खूबसूरत था. यखनी पुलाव was outstanding. हम लोगों ने इतना खाया उधर, इतना खाना खाया. Like I made him cook almost 4. He shot for 4 days and all 4 days he was cooking. Yeah. Perfect. सारी रेसिपीज उसकी मैंने उठा ली. हाँ, बेस्ट है, ये बेस्ट है. मैं भी जब भी कुकिंग शो करता हूँ मैं बोलता हूँ सर आप इधर आओ साइड में, बैक किचन में जो लिखा हुआ है आपने वो पेपर मेरे को दे दो. एक बार मेरे साथ करना कुकिंग शो. हाँ, डन. We should do an episode together. Done. Where I can cook. I'll also cook with you. We'll cook together. I'm saying we'll cook together. I was wondering to ask you कि भाई ये बताओ निहारी में कैसे अलग होता है? बोन आप पीसेस अलग के साथ खेलते हो कि मसाले के साथ खेलते हो, क्या करते हो? भाई बहुत क्लीशे बात बोल रहा हूँ, मतलब मैं प्यार के साथ खेलता हूँ. मतलब it depends on when, who you're making it for. Yeah. You know, food is all about mood. आप बिलीव नहीं करोगे, रणवीर के साथ जब मैंने एपिसोड किया तो उनके साथ भी मैं एक शो फाइनल करके आया हूँ. ऐसी बात करते करते, और अभी आपके साथ भी हो गया. चलो देखो भाई, अगर आप लोगों ने 100 कमेंट में भी बोल दिया ना ये नीचे, तो हम लोग आपके लिए कंटेंट लेके आ जाएंगे. बस हमें तो भूखे हम लोग. हम निहारी बनाएंगे. प्रॉमिस है. और मेरी निहारी रणवीर की निहारी से बेहतर शायद हो सकती है. वाह वाह वाह. तो मुंबई के खाने की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मुंबई बड़ा डिसअपॉइंटिंग है खाने के मामले में. हाँ, इट लैक्स नुआंस. मतलब कॉन्टिनेंटल में किल कर रहा है, लेकिन आजकल see there's improved. I have never really enjoyed the restaurant experience. The real food in Mumbai is cooked in people's homes. Yeah. Because मुंबई में डाइवर्सिटी इतनी है ना, तो कोई बिहार से आया है तो आप उनके घर जाके जब आप खाना खाते हो लिट्टी चोखा उनके घर पे मिलता है, तो घर का है. सही बात. सो डाइवर्सिटी का सही मजा मुंबई में आता है कि पूरे देश का स्वाद आपको
एक शहर में मिलता है, एंड दैट इज मुंबई, दैट सिटी इज मुंबई। यू नो, लोग दिल्ली वगैरह बोलते हैं फूड कैपिटल, बट घर में पका हुआ खाना अगर सही मायने में खाना है आपको, तो देन द सिटी इज मुंबई। आपको यूपी का स्वाद, मतलब आलू पूरी, मतलब वही रसेदार आलू, वो आपको यहाँ मिलेगा। भंडारे वाले आलू मेरे को बहुत पसंद है। मैं मनोज के घर पे क्या बनता था पहले, जब मनोज बैचलर था और मैं उसके घर, मैं टू गो टू द हाउस फॉर लंच, उसके घर पे, और क्या खाने के लिए, परवल। वो परवल ना सरसों के तेल में बनता था। मुंबई की भाषा और मुंबई की स्लैंग का आपके साथ कोई है क्या? यू नो, कल रात को ही मॉडर्न लव में एक्चुअली तलत अजीज है, you know the singer, the ghazal singer. Correct. So I was at his house. And कल रात भर मतलब we were listening to ghazals. अरे वाह. So I grew up at a time when the ghazal form was becoming very popular. And मतलब गुजरातियों में खासकर बड़ा पॉपुलर हो गया था, because Gujaratis got an opportunity to wear shiny kurtas and go to mahfils and pretend like they are so culturally evolved. But उसमें मतलब you know, see the thing is it's about what you make out of those experiences. कि वो सामने वाला मतलब स्यूडो है, समझ नहीं रहा है, फिर भी बिहेव कर रहा है समझने की, उस if you are bothered about that, तो आपका ग्रोथ बंद हो जाएगा। So I got interested in ghazals in Urdu. So मुझे ना मतलब मुंबईया भाषा से एक्चुअली तकलीफ होती थी, because I got so involved in the ज़बान में मैं इतना मतलब खो गया था। And you know, ghazal is still something that I really love. You know, it's a form that I am so fond of. वाह यार, अभी भी मैं 2 मिनट यॉट तक जाके आता हूँ। तो ये सब बातें करनी बहुत जरूरी है, देखिए बार्स की, क्योंकि मतलब ऐसे बैंड्रा एंड बार्स आर किसको मतलब कल रात को मैंने 3 बजे तक मतलब आई वाज ड्रिंकिंग विद तलत भाई एंड लिसनिंग टू गजल्स। क्या बात है। आप भी क्लासिकल में ट्रेनिंग पाए हो यार? मतलब वो उसको ट्रेनिंग तो थी, लेकिन मैं उस पर खरा नहीं उतरा। नहीं क्या? मैं निकल गया, मतलब आई रैन अवे। एक्चुअली इंजीनियरिंग करने जाना था पुणे में, सो आई लेफ्ट द सिटी एंड आई वाज गेटिंग ट्रेन्ड बाय द बेस्ट, मतलब जो सोनू निगम, अरे वाह, हरिहरन, कौन सा है? उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। ओके। तो आई वाज अंडर हिम एंड आई लेफ्ट भाई, वो इट्स माय लॉस, बिकॉज मैं बकवास इंजीनियरिंग करने चला गया। ये देखिए यॉट भी है यहाँ पर, ये यॉट गो टू था। हाँ, यू नो, आज भी मतलब आई लिव सो क्लोज कि इफ देयर इज अ लेट नाइट पार्टी, यस, तो इट्स अ गो टू प्लेस फॉर बियर। हाँ, हो क्या गया है कि मतलब एज years of progress ना थोड़ा रिफाइंड पीने लगते हो। हाँ, मतलब हम लोग जिस टाइम में बड़े हुए यार, बॉम्बे में आपको सिर्फ लंदन पिल्सनर बियर मिलता था, किंगफिशर भी नहीं था। क्या बात कर, लंदन पिल्सनर, एंड फिर एक आया था लंदन डाइट, थोड़ा लाइटर, 2 कैलोरी कम, LD, LP एंड LD, तो थोड़ा लाइटर था, इट लेसर ग्लिसरीन। अच्छा। तो वो मिलता था। एंड विस्कीज में मतलब आपको बेसिकली पीटर स्कॉट, बॉनी स्कॉट, बैगपाइपर, ये तो मेरे को पता ही नहीं थे पहले के 2 नाम, 3rd नाम पता है। पीटर स्कॉट और बॉनी स्कॉट नहीं पता है? नहीं पता। पीटर स्कॉट तो अभी भी मिलता है, मतलब बड़ा वो महंगा विस्की था। अच्छा, इट वाज एन एक्सपेंसिव विस्की। तो विस्की वही सारे थे, ब्लैक लेबल, रेड लेबल। तो मतलब मेरे फादर मतलब किसी के घर पे जाते तो रेड लेबल पीते थे वो लोग, एंड रेड लेबल बोलते थे, अरे कब रेड लेबल पिया मैंने आज। हाँ, ये वाली बात थी। और हम तो, हमारे लिए तो बड़ा आउट ऑफ रीच था। ओल्ड मॉन्क वाज ऑलवेज गो टू। तो ये सारी जगहों में मतलब ये सब मिलता था। अभी सडनली आई एम नोटिसिंग कि मैं, आई डोंट नो वेयर दिस इनकम कम्स फ्रॉम, द यंगर पीपल, व्हेन आई गो टू रेस्टोरेंट्स, आई गो टू बार्स, दे आर ऑर्डरिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉकटेल, दे आर वेरी डिसर्निंग कि जिन कौन सा है आपके पास, डू यू हैव, जिन हैज बिकम अ थिंग। या सो मतलब एकदम कि डू यू हैव कुछ क्या है, मंकी बार ऐसा कुछ है। हाँ, ऐसे मतलब सब नाम पूछते हैं कि डू यू हैव स्ट्रेंजर एंड सन्स, डू यू हैव बॉम्बे सफायर, ग्रेटर देन, यू नो, ये सब। मतलब मैं बोलता हूँ यार भाई, ये सब 3-4 हज़ार रुपए की बोतल है ये सब। हाँ, मिनिमम। हम लोग ब्लू रिबन में घुसते। हाँ, ब्लू रिबन था वो, मतलब 400। हम तो देखते थे सस्ते में क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली क्या है, हिट करना है उसको। सही बात है। अब आई ऑल्सो रियलाइज, हमने भी, हमारा भी रिफाइंड हो गया है। हाँ, बट
आई एम ऑलवेज गेम कि किसी दिन मनोज के घर पे हम लोग बैठ के सिर्फ ओल्ड मॉन्क पीते थे. क्या बात है. ओल्ड मॉन्क वाज चीप, इट वाज गुड एंड यू नो वही था उसमें, मतलब कोका कोला मिला के हम, मतलब मैं फूल जाता था. हाँ सेम. आपने अचिंत का शालीमार सुना है एल्बम? अचिंत का? हाँ, तो अचिंत धक्कर स्कैम 92 के या वो म्यूजिक शालीमार. हाँ, तो क्योंकि स्कैम 92 का साउंड ट्रैक बिकेम बिगर देन व्हाट इट वाज ह्यूज. एंड वो कोई सी अगेन यू डू इट विदाउट एक्सपेक्टेशन, देयर इज नथिंग कि मैं अभी बहुत बड़ा हिट बना रहा हूँ. यस, जब टाइटल ट्रैक हमने सुना ना, वी न्यू कि ये ईयरवर्म है एंड वी हेल्ड ऑन टू द ट्रैक फॉर अ ईयर एंड हाफ. नॉर्मली स्टेल हो जाता है. वी हेल्ड ऑन टू इट, ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. फिर शो का जब एडिट शुरू हुआ वो म्यूजिक हमने दोबारा वी जस्ट टोल्ड द एडिटर कि यार लगा के देख ले. एंड वी न्यू कि यार ये देयर इज समथिंग अबाउट दिस कि इतना बड़ा होगा किसी को नहीं पता था. वो शो भी इतना बड़ा होगा कभी सोचा नहीं था. दिस इज सो इंटरेस्टिंग. मतलब एंड कास्टिंग प्रतीक गांधी, आई एम श्योर यू स्पोकन अबाउट इट, बट इट्स ही हैज बिकम सच अ I mean it was, you know, वही है, प्योरिटी के साथ करो ना कुछ भी, it works. When like Pratik Gandhi was cast because he was correct. Yeah. He is a good actor. You know, I look for a vibe when I meet a person. It's like a marriage. कि आप शूटिंग पे मतलब 60, 65, 80 दिन साथ में बिता सकते हो, हंसते खेलते. सही बात है. तो उससे आप अच्छा काम भी मिलेगा आपको. तो प्रतीक एंड आई गॉट along when we met. एंड इट वाज सेम जब राजकुमार को शाहिद के लिए कास्ट किया था. आई हैड कास्ट हिम बिकॉज आई लाइक्ड हिम. व्हेन आई मेट हिम, मैं एक्चुअली उसको मिल नहीं रहा था. मुझे अनुराग ने एंड मुकेश छाबड़ा ने बहुत कहा था कि यार आप मिल तो लो उसको. तो एक दिन आई सेड कि मिल के क्या करूँ, पैसे मतलब वैसे भी नहीं मिल रहे फिल्म बनाने के. ये राजकुमार यादव उसका नाम था तभी, कि इसको लेकर मैं कैसे बनाऊंगा. तो एक दिन मुकेश छाबड़ा का फ़ोन आया कि सर मिल लो ना, वो नीचे ही आपकी ऑफिस के नीचे खड़ा है. अरे वाह. अच्छा नीचे खड़ा है मतलब, तो ऐसे प्रेशर क्यों डाल रहा है मेरे पे. बोला नहीं सर आप मिल लो, वो नीचे ही है. अच्छा लड़का है, चाय पिला के उसको भेज देना आप. तो राजकुमार केम, वॉकड इनटू माय ऑफिस. ही सैट फॉर, मतलब वी सैट एंड टॉक्ड फॉर नियरली an hour and a half. अरे वाह. And I looked at him, मतलब he left and my wife and I used to share. I used to work from my wife's office. Super. Not share an office. I used to work from her office. हाँ जी. And we used to have share a cabin. So मुझे कोई मिलने आता था तो she had to go out and sit. Oh. So I had asked her to go out. So then she came back into the cabin after he left. And I said कि मुझे मिल गया है शाहिद. She said कौन वो लड़का? I said yeah, मतलब कुछ there's something very beautiful about him. तो यहाँ बैंड्रा का कोई स्ट्रीट फूड का कहानी है आपका मुंबई के? स्ट्रीट फूड कहाँ है इधर, वो जय जवान है. जय जवान है. एंड देन एक्चुअली सैंटा क्रूज में ना, जहाँ मेरी स्कूल थी जी, रोज मैनर, उसके सामने राम और शाम ऑफ कोर्स. हाँ, तो राम और शाम इज माय, हमको स्कूल में एक्चुअली वो कहा गया था अगर तुमको आफ्टर स्कूल आज भी अगर राम और शाम के बाहर देखा गया ना, तो आपको रस्टिकेट कर देंगे. ऑल द मोर रीजन, फॉरबिडन फ्रूट था हमारा. तो हम मतलब शाम को वहीं जाते थे चुपके से, पानी पूरी खाने का जो मजा था ना उधर. तो इट इज रिमेन्ड, राम और शाम हैज बीन go to place. हाँ, गुड. एंड राम और शाम को जानता हूँ मैं. तो लोग मुझे मतलब फ्रॉम माय स्कूल डेज दे नो मी. करेक्ट. 100 रुपए की पानी पूरी नहीं उतरती गले के नीचे, बट फिर भी मजेदार, बहुत सुंदर. हाँ, अभी मतलब महंगा हो गया है सब. हाँ जी, बिकॉज हफ्ता भी बड़ा हो गया ना. तो ये आपने तो मतलब अभी तो देयर इज सो मच एवोल्यूशन, देयर इज सो मच अपग्रेडेशन दैट्स हैपनिंग, बट you've seen the ceiling and everything else come up also, right? Yes, I saw it coming up. I saw it with my own eyes. I never thought कि वो बनेगा. But was there like a fascination जब वो खुल गया तो आप भी गाड़ी लेके निकले टाइप्स? हाँ, अभी भी जाता हूँ. मतलब मुझे that is the pride of Mumbai actually. To be honest, मतलब VT की स्टेशन के बाद ना, the ceiling is the pride of Mumbai. उस पर ड्राइव करने का अच्छा लगता है. It's well maintained. लोग fairly disciplined तरीके से चलाते हैं वहाँ. डिसिप्लिन तो चलो, मैं मतलब आज भी वो कहता हूँ कि मुंबई जितना डिसिप्लिन देश भर में नहीं है. वी आर स्टिल फेयरली डिसिप्लिन्ड फॉर इंडिया. या लेन ड्राइविंग होती है यहाँ पर. लेन में चलते हैं लोग, रुक जाते हैं कभी कभार, हॉकिंग बहुत करते. फिर भी हॉकिंग काफी कम है अगर आप. बट आप जैसे यू मूव सीलिंग की उस तरफ चले जाओ और भी डिसिप्लिन हो जाता है. यू नो, ऑल ऑफ साउथ बॉम्बे इज वेरी वेरी, क्योंकि वहाँ तो पकड़ लेते हैं ना आपको, पकड़ लेते हैं. और वहाँ रिक्शा नहीं है. रिक्शा नहीं है.
ऑटो रिक्शा शुरू हुई मेरे बचपन में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, दे स्टार्टेड, बॉम्बे में रिक्शाज थी नहीं, क्या? ओनली दे वर इन अदर सिटीज। ओह वाओ। बॉम्बे नेवर हैड रिक्शाज, तो वो उन्होंने रिक्शाज लाना शुरू किया बिकॉज टैक्सीज महंगी पड़ रही थी आम आदमी को, तो इसलिए रिक्शाज आई। एंड रिक्शाज वर actually introduced as a means to employ all these people who were supporting the political parties. तो यूथ था जो सपोर्ट कर रहा था ना पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको रोजगार देने के लिए मतलब रिक्शाज के भी रिक्शा लाएंगे तो लोगों को लाइसेंस मिलेंगे कि टैक्सी के लाइसेंस ज़्यादा कितने दे आदमी। तो उन्होंने एक नया वो स्कीम निकाला कि भाई बाकी सारे शहरों में रिक्शा थी, सिर्फ मुंबई में नहीं थी। बट यू ऑल्सो स्पोक अबाउट द होल कंगना एंड सिमरन फियास्को। You want to talk about it? फियास्को क्या मतलब गलती होती है यार इंसान से। You make those mistakes. I got carried away. I mean, whatever it is. But edit take over कर लिया था. Like I don't even, sometimes I don't want to believe the rumors that we hear, but edit नहीं take over किया था उसने। हाँ जी। To be fair to her, but edit take over करने के लिए कुछ था नहीं। हाँ। क्योंकि मटेरियली वो था जो मतलब उसने शूट करवाया था। क्या होता है, शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, शी इज अ वेरी गुड एक्टर, रियली गुड एक्टर, who I feel has limited herself by making films about herself. You need not make all the characters become what you want to believe you are. You know कि अभी कुछ गाना है उसका कि शी इज अ वुमन ऑन फायर, मतलब यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। यू नो, दीज आर थिंग्स दैट यू एस्पायर फॉर योरसेल्फ, यू पुट इट देयर। तो वो मुझे मतलब आई एम नो वन, इट्स नॉट इन माय प्लेस टू क्रिटिसाइज व्हाट द चॉइसेस शी मेक्स। शी इज अ बिग स्टार आज भी, शी इज अ बिग स्टार एंड शी इज अ वेरी गुड एक्टर। आई मेंटेन दैट, एंड वर्किंग विद वी डिडंट जेल। वर्किंग विद हर वाज अ मैसिव मिस्टेक। But it's good. I mean, you learn and you grow. You move on. कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया. Great fun. 133. My God. We will meet when we do a cookout. Yes. And not done, sir. Thank you so much for being on the Bombay Journey. This is me, Sid, signing off. Thank you. I'm taking you water.